Hello everyone, good morning. So we were learning the chapter of the tigers. And even we have sent many pictures, we learn about the territories of the tiger, that how they are marking, how they are taking bath. Even we have seen so many things, right? Now let's revise it quickly and then I'll show you the new videos of the tiger, which is very nice. Okay. So till now we have seen in the first paragraph that the tiger is the heaviest animal. It is mostly found in the Bangladesh, Nepal and Bhutan, and we can say Bengal tigers are mostly found in India, but these are the other places where we can see. Okay, and the tiger belongs from the cat family. It is the wild cat, we can say. And the tigers are feared by, मतलब tiger से कौन कौन डरता है? Human beings and other animals. And in the second paragraph we learn that tigers have excellent eyesight and sharp sense of smell and they are marking their own territories. वो अपना इलाका खुद मार्क करके रखते हैं ताकि और कोई टाइगर या तो एनिमल्स वहाँ पे कब्जा कर ना सके, right? And if some other tigers came over, then they will fight with them. They will loudly roar and they maybe fight with them. Okay. Then in the next page we have seen that when tigers go for hunt, they are hiding themselves in the long yellowish orange grass so that prey won't be able to see him, and suddenly the tiger will attack. Even we have seen one video that how tiger attack buffalo and how to kill it. Okay, because tiger is the heaviest in the body. So what they will do, they will just make their prey fall on the ground and they kill. We have seen that how tiger even enjoying their meal. Once they will eat, they will hide the other remaining part, another remaining prey into the leaves and branches. And another day, and the second day, when tiger will hungry, it will come again and enjoy the meal on the second day as well. Okay. Now we have seen that tiger don't like to stay when there is a sun rays and hot days. गर्मी के जब दिन होते हैं तब टाइगर को बाहर रहना पसंद नहीं है. They generally used to live inside their caves till evening. In the evening they come outside and they used to take bath in the river and sometimes in mud, मतलब मिट्टी में भी वो bath लेते हैं. जैसे आपने पिग को देखा होगा ना, पिग कैसे मिट्टी वाले गंदे होते हैं, सेम लाइक टाइगर पहले मड में भी कभी बात ले लेते हैं, देन दे go to the river or lake, then they clean themselves. Okay, then now we are on the next page, so let's see it. Baby tigers are called cubs. Baby tiger के जो babies होते हैं, you can see here beautiful cub, right? That is called cubs. Female tigers can give birth to 3 or 4 cubs every year. एवरी ईयर वो कितने कब्स को बर्थ दे सकती है? 3 और 4. कब्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क टिल दे आर 6 months ओल्ड. कब्स जब तक 6 month के होते हैं तब तक वो अपने मदर का मिल्क पीते हैं. तब तक वो और कोई एनिमल्स को खा नहीं सकते बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एट दैट टाइम. व्हेन द कब्स आर 8 months ओल्ड, जब 8 months के हो जाते हैं, दे स्टार्ट ईटिंग मीट. फिर वो दूसरे एनिमल को खाना स्टार्ट कर सकते हैं. टाइगर्स कीप देयर यंग सेफ इन रॉकी केव्स अवे फ्रॉम देयर ओन डेंजरस एनिमल्स. टाइगर्स अपने कब्स को जब वो हंट करने जाते हैं, सपोज मदर टाइगर है या मेल टाइगर है, तो वो तो अपने बेबीज़ के साथ ऑलमोस्ट नहीं रह सकते ना, तो फिर खाएंगे क्या? सो व्हेन दे आर गोइंग टू हंट अदर एनिमल, व्हेन दे आर गोइंग आउटसाइड ऑफ दी like jungle, what they will do, they will hide their cubs in the rocky caves. मतलब बहुत बड़े रॉक वाली जो caves होती है ना, जहाँ पे कोई अदर एनिमल इजीली आ नहीं सकते, वहाँ पे हाइड करके जाते हैं. बिकॉज टाइगर्स आर डेंजरस बट
कब्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो और कोई एनिमल उसको खा सकता है, बट दे आर हाइडिंग. एज द कब्स ग्रो देयर मदर लीव द केव मोर ऑफन टू हंट. जब वो थोड़े से ग्रोन अप हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, द टाइम मदर विल लीव द केव समटाइम्स. यंग टाइगर्स लर्न टू हंट ऑन देयर ओन. जैसे जैसे वो यंग होते जाते हैं वैसे अपने आप को हंट करना सीख लेते हैं. वेन दे आर अ ईयर ओल्ड, जब 1 साल के होते हैं तब तक उनको हंट करना भी आ जाते हैं. कब्स स्टे विद देयर मदर अंटिल द एज ऑफ 2. जब तक वो 2 इयर्स के नहीं होते हैं तब तक वो अपने मदर के साथ रहते हैं. फिर वो भी दूसरी जगह पे अपना टेरिटरी बना लेते हैं, अपनी एक जगह बना लेते हैं, फिर वहाँ पे रहते हैं वो. ड्यू टू द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड द इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स, द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स हैज़ गॉन डाउन. अभी कोई कोई लोग क्या करते हैं अपने शौक के लिए या तो फिर वो जो ज़ू है उसमें रखने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट में टाइगर्स और लायन का किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं. मतलब दे आर नॉट काइंड टू देम, दे आर अनकाइंड टू देम एंड दे विल किल दैट टाइगर्स. सो बंगाल टाइगर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम हो गई थी. In 1973, there were only 268 Bengal tigers left in the forest of India. पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट है राइट, तो सबको मिला के ओनली 268 टाइगर्स ही बचे थे खाली. आप सोचो मतलब कितने टाइगर्स को किल कर दिया होगा. बिकॉज अभी ह्यूमन बींग्स व्हाट दे आर डूइंग फॉर देयर ओन पर्पस, दे आर कटिंग डाउन ट्रीज राइट. वो ट्रीज कट कर देंगे, वो फॉरेस्ट को रखेंगे ही नहीं, तो एनिमल्स कहाँ पे रहेंगे सब. सो जंगल एंड द फॉरेस्ट आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर दी एनिमल्स टू लिव इन दैट. बिकॉज केज में रखना और वो जंगल में रखना फ़र्क पड़ता है ना दोनों में. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेव दिस ब्यूटीफुल कैट्स. गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया था. मतलब अगर कोई वुड कट करे या कोई जंगल में जाए, कोई एनिमल्स को कट करे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, उनको सज़ा मिलेगी, उनको जेल में जाना पड़ेगा या तो फाइन देना पड़ेगा उसके लिए. सो इट वॉज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेव दिस ब्यूटीफुल कैट्स. कॉबेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बी कवर्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट में कॉबेट नेशनल पार्क है. नेशनल पार्क पहले तो क्या होता है, नेशनल पार्क में एनिमल्स को केज में नहीं रखते हैं. दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. एक वो फॉरेस्ट का एक पार्ट होता है जहाँ पे एनिमल्स फ्रीली यहाँ वहाँ घूम सकते हैं एंड दे कैन लीव देयर लाइफ, लाइक दे कैन स्पेंड देयर लाइफ ओवर देयर. नाउ एज मेनी एज ऑफ 48 टाइगर्स रिजर्व आर इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर. ये इतने 48 टाइगर है वो रिजर्व करके रखे हैं ये प्रोजेक्ट में, मतलब उतने सेफ है वहाँ पे. देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजेज इन दी नंबर ऑफ द टाइगर इन इंडिया इन रिसेंट टाइम्स. बट अभी ये सब प्रोजेक्ट किया, सब लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो अभी टाइगर की स्ट्रेंथ है, उनका जो नंबर्स है थोड़े इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं. In recent times, the count has been gone up to around 2,500. Okay, in 1973 there were only 268, but nowadays it is 2,500. वैसे थोड़ी कम है अभी, उनसे भी ज़्यादा हो सकती है. India's largest tiger population is found in the Nilgiri Biosphere Reserve, which includes Bandipur National Park, Nagarhole National Park, Mudumalai National Park, and the Wayan Wildlife Sanctuary in Karnataka and Kerala. कर्नाटका में और केरला में क्या है पता है, वहाँ पे सेंचुरी है, नेशनल पार्क्स है, बहुत सारे हैं. दीज आर द नेम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. रिजर्व मीन्स उतना जंगल का एरिया होता है, उतना पार्ट होता है जो खाली एनिमल्स के लिए ही रखा होता है. You can see in the meaning, a part of the earth's surface and atmosphere in which plants and animals are protected and can live safely. वहाँ पे उसको बांध के या केज में अंदर नहीं रखते हैं, उनको वहाँ पे अपनी लाइफ पूरी अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हैं वो, मतलब इट इज़ रिजर्व. तो नेशनल पार्क कौन से ज़ू में और नेशनल पार्क में ये फ़र्क है राइट. ज़ू में तो
केज में रखते हैं, बट आई थिंक उनको केज में नहीं रखना चाहिए। बंदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोले नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड वायनंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे आया है ये सब सेंचुरीज? कर्नाटका एंड केरला में। चलो अभी मैं आपको वो सेंचुरीज, वो जो नेशनल पार्क है वो दिखाती हूँ कि वो कैसे होते हैं। इट इज़ वेरी नाइस एंड वी कैन इवन सी दैट एनिमल्स आर एंजॉइंग वेरी नाइसली ओवर देयर। सी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, वहाँ पे आपको क्या है, जीप लेके जाना पड़ता है अंदर, वरना तो फिर आप पे अटक हो सकता है। ओके, सो टू सेव आवर सेल्फ वी हैव टू ड्राइव बाय सिटिंग इन जीप। आप ये सोचो कि आप यहाँ पे विजिट करने के लिए गए हो कर्नाटका एंड केरला में। ओके, सी वन डियर इज पासिंग फ्रॉम हियर। यहाँ पे वो ऐसे फ्रीली घूम सकते हैं, उनको कोई केज में कैद करके नहीं रखता है। See how beautiful scenario it is. You can even have seen bike, right? But बाइक से वो कुछ एरिया तक ही लेके जाने दे सकते हैं। फिर वो जो नेशनल पार्क वाले लोग हैं उनको तो पता होगा ना कि यहाँ से टाइगर का इलाका स्टार्ट होता है, वहाँ तक अलाउ नहीं करेंगे। नाउ दैट इज वायनंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सी द ग्रीनरी, jeep safari, and this facility is available for the visitors who visit over there. See the big trees and butterflies. See how beautiful it is. This is, we can say, jungly buffaloes. See how cute it is. See the atmosphere. You can even see the elephants are there. See this creature, monkey. They all are our real wealth, right? ये हमारी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमें मिली है। सो वी शुड प्रोटेक्ट देम। हमें उनको कील करना और ये सब नहीं करना चाहिए। वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। See how nice. Now on this Diwali, don't go anywhere. Ask your parents to take you in some national park or some sanctuaries. Okay. Okay, fine. So it was all about the sanctuaries and national park that we have seen. अगर आपको कहीं पे दूर नहीं जाना है then you can ask your parents to take you in the Rajkot. Rajkot there is one national park. Okay, वहाँ पे आप जाके टाइगर, फिर बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स है, 50 टाइप्स की फ़िश है वहाँ पे, एंड इवन यू विल बी एबल टू क्लिक सो मेनी गुड फोटोग्राफ्स ओवर देयर. So it is the very nice place when you can enjoy with your family, and I think you should go and you must visit that. Okay, वहाँ पे हालांकि एनिमल्स को केज में रखा है, बिकॉज यहाँ पे शायद इतना एरिया नहीं है कि पूरा जंगल वो लोग बना पाए. दे आर इन केज, बट यू विल फील वेरी गुड वंस यू विल विजिट इट. ओके, ये चैप्टर रीड करने के बाद आपको तो वहाँ पे जाना ही चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू. स्नैक्स के कितने सारे टाइप्स है, डिफरेंट एनिमल्स है जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे. पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बाहर बोर्ड पे लगाई है कि ये एनिमल यहाँ का फेमस है, मतलब यहाँ से वो बिलोंग करता है, इसकी स्पेशलिटी ये है. ओके, सो आई एक्सपेक्ट दैट एवरी वन विल गो इन राजकोट and visit that. Once you will Google, you will find the destination and the things about it. Okay, and if you didn't get through the Google, then you can contact me. I'll give you the address. Okay, thank you so much everyone. Bye bye. In the next lecture we will continue with our question and answers. So I think you have completed meanings of this chapter in your CW. If it is not done, then write it down today only. Okay.